इस वीडियो को बनाने से पहले आई थॉट कि मूवीज, वीडियोस, इवन ऑनलाइन सिनेमैटिक कंटेंट बनाना मुश्किल है, बट एंड पे इट्स ऑल जस्ट अ कैमरा, राइट? मैं बहुत गलत थी। हर एक सीन, हर एक शॉट के पीछे इतनी ज्यादा डिटेल्स होती हैं। इंटायर कैमरा रिग्स जिन पर टेंस ऑफ इक्विपमेंट लगाते हैं सिर्फ 2 सेकंड के शॉट के लिए। कारचेस शॉट से लेके फ्लावर पर एक सिंगल रेन ड्रॉप कैप्चर करने के लिए आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, टुडे आई हैव इट। I am with Jaber, a professional cinematographer in Pakistan, जिनके पास सबसे रेयर एंड सबसे एक्सट्रीम कैमरा सेटअप है that I've ever seen. उन्होंने Red Bull, Lamborghini, big names के साथ काम किया है. And आज I will show you उनके सब कैमरास, lenses, accessories, build the ultimate camera rig and share secrets जो किसी को नहीं पता about professional filmmaking, including ऐसे कैमरास जो पूरे मुल्क में सिर्फ 2 हैं and उन पर Netflix documentaries बनती हैं. According to Jaber, ये एक Corolla है जो आप ऑफ-रोडिंग लेके जा सकते हो. Not a Fortuner. Corolla. Hello, Jaber. Hi. शुरू करें? Yes, of course. कैमरास में हम शुरू करेंगे with the smallest but the toughest members of the team, the GoPro Hero series. इससे हम जाएंगे all the way from the Hero 6 to 13. ये मैं शूट कर रही हूँ with the GoPro 13 by the way. You know वो point of view shots जो आप देखते हो, जो फुटबॉलर्स ने अपनी चेस्ट पर इसको माउंट किया होता है, तो आप ऐसी I can't see. तो आप ऐसी फुटेज फिल्म कर सकते हो जो बाकी बिग कैमरास नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि इट्स सो स्मॉल। आप इसको हेलमेट पे भी अटैच कर सकते हो। सी बट आई वंडर कि GoPro Hero 6 से लेके Hero 13 तक क्या डिफरेंस आया है? Okay, well, let me explain. When GoPro started, they made obviously small cameras. It gets mounted everywhere, but they were not waterproof. So you'd have to put an extra casing, you buy extra accessories, you take it scuba diving, underwater. But now the newer GoPros, Hero 13, Hero 12, they're completely waterproof up to 10 meters. After that, yes, you would still need to put a case. And you have interchangeable lenses. These lenses, they can come off. Now we started from 2.7K or 2.3K and we've gone up to 5.3K. Let's look at the next camera. Now the GoPro 360. ये इसको और आगे लेके जाते हैं, जिधर आप एक कैमरा से पूरे कमरे का व्यू देख सकते हो. Get it? 360 degrees. And आप इसको reframe करके कट कर सकते हो the way you want to. आप कुछ भी मिस नहीं करोगे. And this camera shows कि this is the perfect starting point कि आपको big, heavy equipment नहीं चाहिए अच्छी videos बनाने के लिए. Sorry, Jaber. Now we move on to the DJI Osmo series. The Osmo Pocket 3, the older Osmo Pocket 1. Wait, hold on. That's not how they started. They started from this, the original DJI gimbal. Osmo Pocket 0. Well, they didn't call it Osmo or they didn't call it Pocket also. It wasn't pocket size. So you had to unlock everything manually. There is no screen, there is no controls from here, and you had all the controls and screen from your phone. So you would put your phone here and then you attach a mic, you are ready to shoot. So now talking about the Pocket 3. By the way, ये मैं पूरी वीडियो Pocket 3 पर ही शूट कर रही हूँ. मैंने एक full product review किया है about the Pocket 3. It's on my YouTube channel. Go watch that video. But इसके बाद Pocket 3 is the newer model. सबसे पहले आया था the Pocket 1 and इसका case is really fun. This is a tiny camera जो आपकी pocket में fit हो जाता है. पहले आपके पास था bulkier case but a smaller camera, but अब you have a bigger camera but a very small case. तो ये है वो improvement over the years. Osmo Pocket एक बहुत अच्छा कैमरा है for creators जिन्होंने अपनी खुद videos बनानी है and they don't have a cameraman जो उनके लिए बड़ा कैमरा पकड़ के बैठे. Going from the Pocket 1 to the Pocket 3 आपको better video resolution मिलती है, a bigger screen and active track कि आपको ये continuously track कर सकता है wherever you go. The best thing about the DJI Osmo is कि इनमें 3-axis mechanical gimbal है, तो it is a gimbal on its own. It's like a gimbal with a small camera, but the camera is really good. I think creators के लिए ये best camera है. I just love this camera. अब हम अपग्रेड करें टू बिगर कैमरा स्टार्टिंग विद द Sony R5. ये सिर्फ कैमरा बॉडी है, इस पर हम लेंस लगाएंगे. आई एम यूजिंग द 35mm 1.4. वो जाबर के पास और बहुत ज्यादा लेंसेज हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे कैमरास के बाद. ये एक वर्सेटाइल हाइब्रिड मिररलेस कैमरा है जो आपको रेजर शार्प स्टिल इमेजेस देगा एंड इनक्रेडिबली स्मूथ वीडियो. ये परफेक्ट ब्रिज है बिटवीन फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग. Now, why is it called the R series? The R is for resolution. Shoots up to 60 megapixels. You can make videos with it. It shoots up to 8K 24 frames per second. But I wouldn't suggest it if you're
heavily relying on videos. For context, 60 megapixels is वो big posters जो आपको billboard पे नजर आते हैं. Anything above 33 megapixels and आप उसको बड़े billboards पे लगा सकते हो. And it will be very high definition. So 60 is literally overkill. To show cameras की actual footage capabilities में हर new camera की video पिछले कैमरा से बनाऊंगी. जैसे अभी ये वीडियो बन रही है with the Sony R5. अगर आपको broadcast level reliability and built-in zoom lens चाहिए, आप Sony PXW Z280 इस्तेमाल करोगे. इसको videographers कहते हैं a run and gun shooting camera. So the reason why they call it run and gun is because it's a fixed lens and it's a zoom lens. It goes up to, so from 38 to 550 mm. Technically, you never need to change a lens. You have all the buttons accessible here. You can zoom in, zoom out from here, from your thumb. It's very lightweight, whether it's a wide shot or you're punching in to get a close-up shot, detailed shots. You can all do it with just one camera. अब हम Sony के सिनेमा लाइन में एंटर हो रहे हैं, starting with the most compact member, the Sony FX3. ये छोटू सा सिनेमा कैमरा बहुत high image quality पैक करता है, and because it's so small तो इसको बहुत easily आप माउंट कर सकते हो on gimbals and tight spaces में लेके जा सकते हो. What makes a camera cinema grade is that it can shoot in RAW, and you can shoot between ISO 800 to 12,800. So in low light, it's excellent. If you're shooting somewhere like in Karachi with heat waves and everything, it has an inbuilt fan, so it keeps it cool. ये ideal है for movement and handheld storytelling, and इसको आप heavier rigs पे attach कर सकते हो for that cinematic high production look. अब इस next segment के लिए हम shoot करेंगे using the FX3, and मैंने camera body के ऊपर lens attach किया which is 24 to 70 mm. हम step up कर रहे हैं in size and features with the Sony FX6. ये कैमरा एक perfect balance है between power and portability. इसमें इससे बड़े कैमरास की जितनी full frame sensor technology है जिससे आपको वो background blur मिलता है and gorgeous low light results. लेकिन ये लाइट इनफ है कि आप इसमें लॉन्ग डेज ऑफ शूटिंग कर सकते हो, एंड इसी से कमर्शियल्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज शूट होती हैं. It has the same features as the FX3. It has the same sensor, same low light resolution. The major difference is obviously, as you can see, the amount of assignable buttons that you have. You could change it to do whatever you want. And the other major difference is the ND filter. Basically just sunglasses over a lens. And smaller cameras, you have to manually attach them on the lenses. This has it inbuilt. ये वीडियो शूट हो रही है with the FX6, and अब हम आए हैं to the king of the entire collection, the Sony FX9. ये ऐसा कैमरा जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं, and ये probably सबसे advanced camera that I've ever seen. According to Jabber, ये एक Corolla है जो आप off-roading लेके जा सकते हो. Not a Fortuner, a Corolla. ये पिछला FIFA World Cup in 2022 कतर में इस्तेमाल हुआ था for live broadcasting. ये कितना महंगा होगा? Well, when they initially released it, it was almost 48 lakh. Just the camera body. Just the camera body. गाड़ी मिल जाती है 30 लाख की. इस कैमरा में मैसिव सेंसर्स हैं जो बहुत ज्यादा लाइट एंड डिटेल कैप्चर कर सकता है. इट शूट्स अप टू 6K एंड ब्रॉडकास्ट सिनेमैटिक क्वालिटी फुटेज. ये वीडियो अभी FX9 से शूट हो रही है. ऐसा लग नहीं रहा कि आप एक मूवी देख रहे हो सिनेमा में. इस कैमरा से आप ब्राइट हाइलाइट्स एंड डीप शैडोज एक ही शॉट में कैप्चर कर सकते हो. इस कैमरा में स्मार्ट डुअल बेस्ड ISO टेक्नोलॉजी है. ISO मींस कि आपका कैमरा कितना सेंसिटिव है टू लाइट. इन ब्राइट सनलाइट आप ISO लो रखोगे, एंड इन डिम डार्क एनवायरनमेंट्स आप ISO नंबर हाई रखोगे. FX9 अल्टीमेट टूल है फॉर फिल्म्स अगर आपको हाई प्रोडक्शन फुटेज चाहिए, एंड इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज भी लगा सकते हो कि एंड में इट लुक्स लाइक दिस. एंड वी डन विद द कैमरास. बट कैमरा सिर्फ एक पार्ट है फिल्म मेकिंग का. असल गेम लेंस की होती है, एंड Jabber has a huge collection, इतनी बड़ी कलेक्शन कि वो दुनिया को बहुत डिफरेंट तरीकों से देख सकते हैं. लेंस के बारे में सोचो एज द राइट पेयर ऑफ ग्लासेस जो आप डिफरेंट सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल करते हो. लेंस में 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज द mm कि फोकल लेंथ कितनी है, आप कितना ज्यादा सीन कैप्चर करते हो. द एंगल ऑफ व्यू एंड सब्जेक्ट कितना बड़ा दिखेगा, द मैग्निफिकेशन. छोटे नंबर्स लाइक द 12 to 24 mm को हम वाइड एंगल लेंस कहते हैं, क्योंकि एज यू कैन सी इससे एक ब्रॉडर फील्ड ऑफ व्यू आता है जिससे आप लैंडस्केप्स, आर्किटेक्चर एंड टाइट इंडोर स्पेसेस में शूट कर सकते हो. नाउ 12 to 24 mm मींस कि आप 12 मिलीमीटर से 24 मिलीमीटर तक जूम इन कर सकते हो. देन सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर होता है द f वैल्यू. वो शो करता है द साइज ऑफ द लेंस ओपनिंग कॉल्ड एपर्चर. छोटे f नंबर्स जैसे 1.4 और 2.8 से ज्यादा लाइट एंटर होती है, सो इससे एक शैलो डेप्थ ऑफ व्यू होता है, आपका सब्जेक्ट इज इन शार्प फोकस, सो यू गेट दिस ब्यूटीफुल बैकग्राउंड ब्लर. f वैल्यू जैसे बढ़ाओगे तो बैकग्राउंड ब्लर कम होगा, इसलिए आप लैंडस्केप्स में इस्तेमाल कर सकते हो. We're done with this. So lens number 2 is the classic 24 to 70 mm f2.8. ये go to everyday lens है because it's very versatile for interviews, travel or just storytelling content.
नाउ लेंस नंबर 3 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स या पोर्ट्रेट्स के लिए 70 to 200 mm आप बैकग्राउंड करीब ला सकते हो एंड सब्जेक्ट कुड बी इन फोकस। नाउ लेंस नंबर 4 एंड ये मेरी फेवरेट लेंस है क्योंकि इट हैज अ वाइड mm रेंज फ्रॉम 28 to 135 mm with a constant f4 and a very big plus point क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक जूम है तो आप बहुत स्मूथली जूम आउट कर सकते हो डिफरेंट सीन्स कैप्चर करने के लिए जिसमें आपको स्मूथ जूम इन एंड आउट्स चाहिए। नाउ ये सब लेंस थे जिसमें जूम इन रेंज थी। ऐसे लेंस भी होते हैं जिनकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है लाइक दिस 35 mm f1.4 एंड दीज आर कॉल्ड प्राइम लेंसेज। जो वाइड है विद अ सिग्निफिकेंट बैकग्राउंड ब्लर के लगता है कि द सब्जेक्ट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। फिर ये 50 mm f1.2 जो सबसे ब्राइट लेंस है इन दिस एंटायर कलेक्शन क्योंकि इसकी f वैल्यू सबसे लो है। ये लो लाइट सिचुएशंस के लिए बहुत अच्छी है एंड अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स कॉल इट द निफ्टी 50 क्योंकि इट जस्ट लुक्स नाइस, इट्स वाइड इनफ एंड इट्स close enough. फिर ये 42 mm f2 lens. A very fun fact about this lens is कि ये USSR से आया तो that means कि ये World War II से पुराना है. So lenses depreciate नहीं होती. You can use them for as long as you want. Cameras on the other hand depreciate होते हैं and इसीलिए उनकी value with time कम हो जाती है. ये वो sweet spot है between wide and normal. And ये एक natural perspective देता है जो everyday shooting जैसे interviews, portraits, travel के लिए काफी अच्छा है. And you might have noticed कोई distortion नहीं है. Now ये lens It looks absolutely crazy. ये जाबर खुद ही explain करेगा. So technically it's called a probe lens. It's a macro lens. It goes from f14 to f40. It's horrible in low light, so you would need a lot of lights, 3 or 4 lights pointing at the subject. If you're recording food or you're recording a close-up of a book, text of someone writing, then this is something you would use. So हमने कैमरास देखे, lenses देखी, but पूरे कैमरा सेटअप का असल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए we use accessories. आपने देखा होगा शॉट ऑन आईफोन एड्स जिन पर कैमरा से ज्यादा रिग्स इस्तेमाल होते हैं एंड उन्हीं की वजह से आपको एक्चुअल फिल्म फुटेज मिलती है। सो ऑस्मो एंड गोप्रोस के लिए आपके पास ND फिल्टर्स होते हैं और न्यूट्रल डेंसिटी। सो ND फिल्टर्स आर लाइक सनग्लासेस फॉर योर कैमराज। एग्जैक्टली लाइक दैट, वो सनलाइट की ब्राइटनेस को रिड्यूस करते हैं। तो आपके पास अल्ट्रा वाइड होता है फॉर द गोप्रोस जिससे आपका फील्ड ऑफ विजन और बढ़ जाता है, इवन दो गोप्रोस को आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है। एंड देन यू हैव मैक्रो लेंस फॉर द क्लोजअप्स जिसमें बिल्कुल आपकी माइन्यूट डिटेल्स आ जाती हैं। इसमें भी आप इस रिंग को इस्तेमाल करके ज्यादा जूम इन या कम जूम इन कर सकते हो। एंड फिर एनामॉर्फिक लेंस जिसमें आपको वो स्ट्रीक्स ऑफ लाइट नजर आती है इन दोज मूवीज एंड शॉट्स। सो दैट मीन्स इवन इफ यू जस्ट हैव अ गोप्रो, इतना छोटा सा कैमरा, आपके पास बहुत ज्यादा एक्सेसरीज होती हैं टू बी क्रिएटिव एंड क्रिएट समथिंग अमेजिंग। सो बड़े कैमरास के लिए आपके पास प्रिसिजन स्लाइडर्स होते हैं। सो एक स्ट्रेट ट्रैक जिस पर आपका कैमरा ग्लाइड कर सकता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और इवन साइडवेज लाइक अ मिनिएचर डॉली। सो दिस इज अ रिकॉर्डर एंड अ मॉनिटर कि जब आप भी कैमरा पे कुछ भी शूट कर रहे होते हो तो इस पे आपको रियल टाइम व्यू आ रहा होता है। इसमें SSD कार्ड लगा के आप स्टोर भी कर सकते हो, आप ये कैमरा पे अटैच करते हो एंड यू कैन। So usually if the cameraman is looking at the screen that's already on the camera and maybe someone else, the assistant camera, is standing beside him to do settings or like to keep focus, like if he's manually focusing from here. अब इसमें black and white part is in focus. No. The red part is in focus. It's always the different color. You can view it in color also, but so now you'll see you can like do these slow focus reveals. So heavy bulky cameras को पूरा दिन कैरी करने के लिए you have these shoulder rigs जिससे ये बहुत balanced comfortable position में आ जाते हैं। तो you can have more control and long shooting days में it's just better. This is also a shoulder rig. See, तो इस पे आप FX9, FX6, even biggest cameras लगा दोगे तो it's always comfortable. I hope आपने इस वीडियो से ये सीखा होगा कि आपको प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग के लिए सबसे बड़ा या सबसे एक्सपेंसिव कैमरा नहीं चाहिए। You just need the right tools कि आप अपनी स्टोरी क्रिएटिवली बता सको। मतलब मैं अपनी वीडियोस सिर्फ आईफोन या Osmo Pocket 3 से शूट करती हूँ एंड आई थिंक आप लोगों को वो पसंद आता है। बट दैट बीइंग सेड, ये सेटअप होना एंड देन इसको इस्तेमाल करना जाना कि सब कुछ आपस में कैसे कनेक्टेड है, बहुत मुश्किल काम है। ये था द अल्टीमेट कैमरा सेटअप एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ यू डिड देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मे बी नेक्स्ट टाइम मैं इनका ऑडियो एंड लाइट सेटअप भी बताऊंगी। If you want that, please let me know in the comments. Thank you so much for watching. It is a wrap.